بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 سال بعد قسط نمبر 1۔ جنوری کی یک بستہ رات کا آخری پہر تھا۔ وہ تیزی سے چلتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ ٹھٹھا شہر کے قدیم ترین مکلی قبرستان کی طرف تھا۔ اس کی آج کی رات بھی یوں ہی بے مقصد گھومتے گزر گئی تھی۔ آج بھی اس کی تلاش ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس کا ہر رات کا معمول تھا اور اس معمول کو کئی سال ہو گئے تھے۔ مغرب کی اذان کے بعد وہ اپنے مسکن سے نکل آتا اس کی تلاش میں جس کے لیے یہاں آیا تھا۔ صحرا بیابانوں کی خاک چھان کر صبح کی پو پھٹنے سے پہلے اپنے مسکن کی طرف لوٹ جاتا۔ کئی سال گزر گئے تھے مگر اسے وہ نہیں ملا تھا اور نہ ہی اس کی تلاش ختم ہوئی تھی جس کی اس کو تلاش تھی۔ وہ بھی اس جیسا ہی تھا۔ اس نے ایک دفعہ 2 لوگوں سے سنا تھا کہ وہ یہاں سندھ کی زمین میں کہیں کئی سال سے موجود ہے اور یہ اس کی تلاش میں یہاں ٹھٹھا شہر میں آیا تھا۔ اسے اپنے جنم بھومی تو یاد نہیں تھی، البتہ اتنا پتہ تھا کہ اسے یہاں ٹھٹھا شہر تک پہنچنے میں کئی سال لگے تھے۔ اسی دوران وہ کئی بار انسانوں کا غلام ہونے سے بال بجا تھا، بلکہ 1-2 بار تو یہ موت کے منہ میں بھی جاتے جاتے رہ گیا۔ یہاں اس نے اپنا مسکن مکلی قبرستان کے ایک پرانے سے درخت کے قریب بنایا تھا۔ سوچوں میں گم وہ تیزی سے رواں دواں تھا کہ اچانک سامنے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ نظر آئی۔ اس نے چون کر سامنے دیکھا اور چھلانگ لگا کر ایک طرف جھاڑیوں میں کود گیا۔ عین اسی لمحے ایک گاڑی زن سے اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ اس کی تیز نظروں نے اتنے سے وقت میں ہی گاڑی میں موجود نفوس کی گنتی کر لی تھی۔ وہ کل 4 انسان تھے جن میں سے ایک عورت بھی تھی۔ اس نے ایک بار پھر قدم بڑھا دیے مگر اب کی بار اس نے عام راستہ چھوڑ کر جھاڑ جھنکار میں چلنے کو ترجیح دی تھی۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی انسان کی اس پہ نظر پڑے یا کسی انسان سے اس کا ٹاکرا ہو۔ اس زہریلے حشرات سے کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے وہ بے دھڑک جھاڑیوں میں سے گزرتا جا رہا تھا۔ اسے خوف تھا تو بس انسانوں کا۔ انسانوں سے اسے بچپن سے ہی ڈر لگتا تھا، خاص طور سے اس وقت سے جب ایک انسان نے اس کے سامنے اس کی ماں کو بے دردی سے مار دیا تھا اور پھر کچھ عرصے بعد ایک اور انسان عجیب سی کوئی چیز بجا کر اس کے باپ کو پکڑ کر لے گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ اس وقت یہ بہت چھوٹا تھا اور اس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس وقت اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس انسان نے منہ سے لگا کر ایسی کیا چیز بجائی تھی جس سے اس کا باپ نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود اس انسان کی طرف کھینچتا چلا گیا تھا۔ مگر جوں یہ بڑا ہوتا گیا اسے سب سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے اپنے پرکھوں اور قبیلے کے بڑوں سے بھی سنا تھا کہ انسان اس دھرتی کی سب سے خطرناک مخلوق ہے، یہاں تک ممکن ہو اس سے بچ کر رہنا، اور اس نے اپنے بڑوں کی یہ بات پلے باندھ لی تھی۔ سوچوں میں گم اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ قبرستان کے قریب پہنچ گیا۔ اب قدرے وہ بے فکر ہو گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس وقت اس قبرستان میں سوائے اس کے اور کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ آرام سے چلتا اپنے مسکن کے قریب پہنچا اور ایک بوسیدہ سی قبر کے قریب لیٹ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات سرد تھی مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ مزے سے ٹھنڈی زمین پر لیٹ کر آسمان کو تکنے لگا۔ جہاں پہلے یہ رہتا تھا وہاں بس سردی ہی سردی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت جگہ تھی، چاروں طرف اونچے پہاڑ اور ان پہ جمی برف سے لگتا تھا یہاں سب کچھ برف سے بنا ہوا ہے۔ اس کے لیے بس ایک ہی مصیبت تھی کہ کچھ ماہ کے لیے وہاں لوگوں کا ہجوم رہتا، ان گنت لوگ آتے اور جاتے تھے۔ پھر جیسے ہی برف باری شروع ہوتی لوگ بھی آنا بند کر دیتے، جیسے ہی برف گرنے کا موسم ختم ہوتا لوگ پھر سے آنا شروع ہو جاتے۔ اسے دن رات اپنے مسکن میں گزارنا پڑتے تھے۔ کھانے کو بھی مشکل ہی کچھ دستیاب ہوتا تھا۔ 1-2 بار یہ لوگوں کی نظروں میں آیا تھا، کچھ تو اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے مگر کچھ نے ہمت کر کے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ بس اس کی
किस्मत अच्छी थी कि इससे ये इनके हाथों बाल बाल बचा था। खुश किस्मत तो ये शुरू से ही था। इस वक्त से जब ये पैदा हुआ था, दुनिया में आते ही इसने सबसे पहले जो देखा वो इसे हैरान और परेशान कर गया था। इसके इर्द गिर्द जैसे अनगिनत अजसाम फिर रहे थे। इसने बड़ा मुश्किल इनको इर्द गिर्द केला और खुद को किसी न किसी तरह एक तरफ कर लिया। इसकी नजर सामने पड़ी तो इसे अपने जैसा मगर बहुत बड़ा जिस्म नजर आया। इसे लगा शायद ये इसकी माँ है। इसकी माँ ने अचानक सर उठाया, मुंह से तेज हवा जैसी आवाज निकाली और इन सब को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। इस जैसे छोटे छोटे तमाम अजसाम एक दूसरे के ऊपर नीचे गिरने लगे। इनमें खलबली मच गई थी। फिर इसकी माँ ने इनको एक एक करके खाना शुरू कर दिया। ये और कुछ दूसरे अपनी माँ के साथ से निकलने की कोशिश करने लगे। कुछ खुशकिस्मत निकल गए और कुछ को इसकी माँ ने निगल लिया था। बच जाने वाले खुश नसीबों में एक ये भी था। यह सार से निकलकर भागा नहीं बल्कि कुछ दूर जाकर लेट गया। इसकी माँ ने पेट भरने पर एक बार फिर फनकार मारी और जमीन पर सर रखकर आराम करने लगी। इसके साथ बच जाने वालों में से कुछ मर गए थे और कुछ को लोगों ने पकड़ लिया था या मार दिया था, मगर ये जिंदा रहा। इस दिन के बाद इसकी माँ ने बच जाने वालों को ना मारने की कोशिश की और ना ही खाने की। वो इन सब को साथ रखने लगी। वहां इनका पूरा कबीला आबाद था। अपने बड़ों से इसने बहुत कुछ सुना और सीखा था, जिनमें से इनकी नस्ल का नाम भी था मोलसिक। ये मोलसिक नस्ल से था। इसे ये नाम अच्छा लगा था। फिर जब एक दिन इसकी माँ को किसी इंसान ने मार दिया और इस बाप को कोई स्पेरा पकड़ कर ले गया तो ये दिल बर्दाश्ता होकर कबीले और इस जगह से निकल आया। ये दिन रात चलता रहा और ना जाने कहाँ और कितनी दूर निकल आया। इसे कोई खबर ना थी कि वो इस वक्त कहाँ है। वो एक खूबसूरत और ठंडा इलाका था। इसे ये जगह पसंद आई। इसने यहीं अपना मस्कन बना लिया। इसे नहीं मालूम कि इसे यहाँ रहते कितना अरसा गुजर गया। अलबत्ता इतना जरूर हुआ था कि पहले हालात और थे, अब इससे मुख्तलिफ थे। लोग भी बदल गए थे और किसी हद तक मौसम में भी तब्दीली आ गई थी। पहले यहाँ कोई इंसान नहीं रहता था। फिर एक दिन कुछ लोग इसके मस्कन से कुछ दूर आकर आबाद हो गए। इसके बाद ये सिलसिला चाल निकला। लोग आते रहे, आबाद होते रहे। देखते ही देखते आसपास गांव के गांव आबाद हो गए। तवील अरसा गुजरा। लोग इस जगह को देखने आने लगे। इंसानों की बहतात होने लगी तो इसे खतरा महसूस हुआ। इंसानों से इसे दूर ही रहने का कहा गया था। इसने यहाँ से कूच का फैसला कर लिया और एक बार फिर चल पड़ा। वो चलता रहा और कई शहर, गांव, जंगलों से गुजरता एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। इसने यही क़याम का फैसला किया और जमीन में बहुत गहराई तक बना एक सुराख तलाश किया और इसमें रहने लगा। इसके दिन रात सुकून से गुजर रहे थे। जब एक दिन अचानक ही इसने एक सरीली सी आवाज सुनी। आवाज कहीं दूर से आ रही थी, मगर इस धीमी धीमी सी आवाज ने इसको अजीब सी मस्ती में मुब्तला कर दिया था। इसका दिल चाह रहा था ये इस आवाज को करीब से जाके सुने। इसे महसूस भी ना हुआ कि इसका जिस्म इस सरीली सी आवाज को सुनकर आस्ता आस्ता हलकोरे ले रहा है। ये बेख्तियार और झूमने लग गया था। आवाज मुसलसल आ रही थी। जब इसे रहा ना गया तो अपने मस्कन से निकलने के लिए बाहर की तरफ चल पड़ा। इसने जैसे ही अपने मस्कन से सर बाहर निकाला, आवाज वाज़िया हो गई। इससे पहले कि ये इस आवाज की तरफ चल पड़ता, अचानक ही इसे एक ख्याल आ गया था। कई साल पहले इसका बाप भी ऐसी ही एक आवाज सुनकर इस तक गया था और फिर कभी वापस नहीं आया था। इसने वापस होने की कोशिश की, मगर इसका जिस्म आगे बढ़ने की लगन में था। बामुश्किल इसने खुद को घसीट कर अपने मस्कन में डाला और खुद को लपेट कर मुंह जमीन में दे लिया। एक बार फिर ये बाल बचा था। फिर दोबारा कभी इसे वैसी आवाज नहीं आई थी।
कई साल सुकून से गुजर गए। एक दिन इसने अपने मस्कन से बाहर इंसानों की आवाज सुनी। बाहर निकलने की बजाय वो मजीद दबक कर बैठ गया। वो दो इंसान थे जो आपस में सांपों की ही बात कर रहे थे। इसे इनकी बातों से ही पता चला कि सिंध की जमीन में सहराई रेत में कोई बहुत ही पुराना सांप देखा गया है और हर सपेरे की कोशिश है कि वो इसे पकड़े, मगर लाख कोशिश के बावजूद अभी तक वो किसी के हाथ नहीं आया था। ये दो इंसान सपेरे थे ये जो यहाँ सांपों और जड़ी बूटियों की तलाश में आए थे। इसने फैसला कर लिया था कि कैसे भी हो ये इस तक जरूर पहुंचेगा। कम से कम कोई तो इसके जैसा होगा जिसके साथ मौत तक जिंदगी गुजारी जा सके। चलो और नहीं तो एक दूसरे का इंसानों से तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश ही कर सकेंगे। इसे नहीं मालूम था सिंध कहाँ है, मगर इसने सोच लिया था कि ये सिंध जरूर जाएगा। ये चलता रहेगा और जहाँ रेत ही रेत हुई वहाँ ठहर जाएगा। किसी तरह छुप कर इंसानों की गुफ्तगू से अंदाजा लगाएगा कि ये सिंध है या नहीं। अगर ना हुआ तो आगे चल पड़ेगा और अगर हुआ तो वहीं कहीं कोई महफूज जगह देखकर अपना मस्कन बना लेगा और फिर अपने जैसे इस दूसरे को तलाश करेगा। यही सोच इसे सिंध की सरजमीन पर ले आई थी। सफर की तमाम सोबतें इसकी लगन के आगे हार गई थी। इसे ना जाने कितने साल लगे थे, मगर वो किसी न किसी तरह सिंध पहुंच गया था। सिंध में वो इत्तफाकन मकली कब्रिस्तान पहुंच गया था। इसे यह जगह सबसे महफूज और मुनासिब लगी थी। इसने यहाँ एक पुराने दरख्त के करीब अपना मस्कन बनाया और रहने लगा। ये रात को निकलता और जिसकी तलाश में आया था इसको ढूंढने की कोशिश करता। दिन को ये अपने मस्कन में ही रहता। खाने के नाम पर यहाँ इसको फिल वक्त मट्टी ही दस्तयाब थी, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। हर रात को निकल पड़ता और तलाश करके सुबह होने से पहले पहले वापस लौट आता। इसे जहाँ आए कई साल हो गए थे, मगर इसे की तलाश मुकम्मल ना हुई थी। फिर एक शाम मगरिब के बाद वो अपने मस्कन से बाहर निकला और वहीं लेटकर रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। चांदनी रातें थी। चांद की हल्की हल्की रोशनी दुनिया के कदीम तरीन कब्रिस्तान में फैली अजीब सी परअसरारियत फैला रही थी। ऊंचे मकबरों के साए ऐसे लगते थे जैसे किसी परअसरार मखलूक ने कब्रिस्तान पर दावा बोल दिया हो। वो लेटा सोच रहा था कि पता नहीं कब इसकी तलाश खत्म होगी, पता नहीं कब इसे इसका हम जिन्स मिलेगा जिसके साथ वो कुछ दिन सुकून से गुजार सके। खुद को पेट के बल घसीट कर चलना इसके लिए जरा मुश्किल था, क्योंकि इस तरफ अपने मस्कन से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। अगर दूर जाता सुबह से पहले वापस नहीं आ सकता था। इसकी जिसामत काफी लंबी चौड़ी थी। कोई भी इंसान इसे देखकर खौफजदा हो सकता, मगर मुमकिन था कोई इंसान इसे जान से ही मार देता। इसलिए यह सुबह से पहले हर सूरत अपने मस्कन लौट आता था। काश मैं इंसान होता तो इंसानों की तरह चलकर दूर दूर जा सकता। लेटे लेटे इसने सोचा और फिर मुंह से एक फनकार मारी और खुद को घसीट कर चलने की कोशिश की, मगर इसका जिस्म एक इंच भी ना ही हिला था। हैरानी से इसने दूसरी बार कोशिश की, मगर अब की बार भी वही कुछ। ये खुद को एक इंच भी ना हिला पाया था। इसने खुद को लपेटना चाहा, मगर नाकाम रहा। बेबसी से इसने आसमान की देखा। शायद मैं मरने लगा हूँ, इसने सोचा और सर जमीन पर रख दिया। ऐन इसी लम्हे इसे जिस्म के पिछले हिस्से में कोई तब्दीली महसूस हुई। इससे जिस्म का पिछला हिस्सा भारी सा महसूस हुआ। इसने सर मोड़कर पीछे देखने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। जिस्म में होने वाली तब्दीली अब पेट तक पहुंच गई थी। जिस्म में हलचल सी हो रही थी, मगर ये देखने से कासर था। इसे अपनी मौत का यकीन हो गया था। इसने आंखें बंद करके अपना सर जमीन पर टिका दिया। 2-4 मिनट तक मजीद कुछ ना हुआ। इसने आंखें खोलकर देखा और खुद पर नजर पड़ते ही इसके मुंह से अजीब सी फनकारनुमा आवाज निकली थी। वो आंखें फाड़े बेयकीनी से खुद को तके जा रहा था।
जारी है। अगर आप लोग मजीद ऐसी कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज।